سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کراچی والوں پانی ذخیرہ کر لو، 3 اضلاع میں 2 دن پانی نہیں ملے گا۔ مرمتی کام اور سروے کے لیے ہب کینال کل اور پرسوں بند رکھنے کا فیصلہ۔ 28 اور 29 اکتوبر کو ضلع گربی، کیماڑی اور بستی میں پانی کی سپلائی معطل رہے گی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے واٹر کارپوریشن حکام کو آگاہ کر دیا، شہریوں سے پانی احتیاط سے استعمال کرنے کی اپیل۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مرمتی کام اور سروے کے لیے ہب کینال کل اور پرسوں بند رکھنے کا فیصلہ۔ 28 اور 29 اکتوبر کو ضلع گربی، کیماڑی اور بستی میں پانی کی سپلائی معطل رہے گی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے واٹر کارپوریشن حکام کو آگاہ کر دیا، شہریوں سے پانی احتیاط سے استعمال کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت تعلیمی ترقی کے متعلق اہم اجلاس، نجی شعبے کے ذریعے 500 اسکولوں کے سفر کی پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، دی سٹیزنز فاؤنڈیشن اور اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ معاہدہ صوبے بھر میں معیاری تعلیم تک رسائی کے فروغ کے لیے SEF کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کیا گیا۔ اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزیر تعلیم سید سردار شاہ سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ یہ شراکت داری 2019 سے 2029 تک کے عرصے پر محیط ہے، جس کا مقصد SEF کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے ذریعے سندھ بھر میں معیاری تعلیم تک رسائی میں اضافہ کرنا ہے۔ صحافی امتیاز میر کے قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی IG سندھ غلام نبی میمن اور کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوٹھو کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، امتیاز میر کو 1 ماہ قبل قتل کیا گیا تھا۔ پڑوسی ملک سے آپریٹ ہونے والی کالعدم تنظیم نے قتل کیا۔ گرفتار ملزمان نے ریکی کے بعد صحافی کو قتل کیا۔ پولیس اور حساس ادارے نے کارروائی کی۔ صحافی امتیاز میر پچھلے ماہ ان کا ٹارگٹ کیا اور انتقال ہو گیا۔ انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور انفارمیشن گیدر کی اور ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ 4 لوگ ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں، 4 عدد ویپنز ہیں جو پسٹلز ہیں اور اس کے ساتھ 2 موٹر سائیکل ملی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کے میڈیا ایڈوائزر کی گاڑی کراچی میں اسلحے کے زور پر چھین لی گئی۔ علی ایوب سے گاڑی چھینے جانے کی واردات 22 اکتوبر کو طاہر ویلا چورنگی FB ایریا میں پیش آئی۔ کار چھیننے کا مقدمہ گلبرگ تھانے میں درج کر لیا گیا۔ پولیس نے گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ ٹری کی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ سینٹر فار ڈیجیٹل فورینسک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اکیڈمک بلاک کے لیے فنڈ وفاقی حکومت نے جاری کیے تھے۔ منصوبے پر 30 کروڑ 81 لاکھ سے زائد کی لاگت آئی ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ کراچی میں نئی عمارت کا اضافہ، تیسری فورنزک لیب کا افتتاح کر دیا گیا۔ سینئر سینٹر فار ڈیجیٹل فورنزک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اکیڈمک بلاک کے لیے فنڈ وفاقی حکومت نے جاری کیے تھے۔ منصوبے میں 30 کروڑ 81 لاکھ 56 ہزار روپے لاگت آئی۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی ڈاکٹر خالد محمود عراقی کا کہنا تھا کہ لیب مختلف اقسام کے ڈیجیٹل جرائم میں لا انفورسمنٹ فورسز کو معاونت فراہم کرے گی۔ تو یہ تمام بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ شیئرنگ کے بنیاد پر مختلف ڈپارٹمنٹ اس کو استعمال کریں گے، اور میرے نظر میں سب سے زیادہ توجہ اس بات کی بھی دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی مینٹیننس کے اوپر توجہ دی جائے۔ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سعید شیخ نے کہا کہ عمارت میں 5 کلاس روم سمیت 6 لیبس ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یہ پہلی بلڈنگ ہے and we are set to inaugurate every month for next 3 months every month a new building انشاءاللہ، اور BC صاحب اس کو اناگریٹ کریں گے اور ہم ہینڈ اوور کرتے جائیں گے۔ تو پروبیبلی مجھے لگتا ہے کہ ہم جنوری سم ویئر اس میں ساری بلڈنگز ہینڈ اوور کر دیں گے۔ باقی ساری ایکٹیویٹیز کلوز ہو چکی ہیں۔ ان بلڈنگز کو فرنشنگ کے لیے ٹینڈر ہو چکا ہے، ان کی اکوپمنٹ کے لیے ٹینڈر ہو چکا ہے۔ ہم نے ساری لیبس کے لیے گلاس ویئر اینڈ جو یوزیبل کنزیومیبلز ہوتے ہیں وہ بھی دے چکے ہیں۔ عمارت میں نئی ڈیجیٹل فورنزک لیب میں مختلف سرٹیفکیٹس اور ڈپلوما کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ BS اور ماسٹرز پروگرام کے شروع کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سعید زبیر راشد، City 21۔ کراچی میں اب ہوں گے ای ٹریکنگ فیس لیس چالان، 5,000 روپے سے 1 لاکھ روپے تک جرمانے وصول ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سینٹرل پولیس آفس میں فیس لیس ای ٹریکنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی میں اب ہوں گے ای ٹریکنگ فیس لیس چالان،
5,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक जुर्माने वसूल होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में अब होंगे ई ट्रैकिंग फेसलेस चालान। 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक जुर्माने वसूल होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध में डिजिटल शफाफियत जिद्दत की जानिब अहम कदम। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ अब जदीद कैमरों से रिकॉर्ड होंगी। तब्दीली के सफ़र का आगाज़ कराची से। वज़ीर आला सिंध ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने पर जोर दिया। हेवी ट्रैफिक से मसाइल का भी एतराफ़ किया। तमाम हेवी व्हीकल्स पर ट्रैकर लगाने का हुक्म दिया। वाज़ेह किया, पहली बार चालान पर माफ़ी होगी, दोबारा खिलाफ वर्जी पर पहले चालान की वसूली होगी। पुलिस में मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है। ई टिकटिंग सिस्टम से जानिबदारी का खात्मा होगा। ई चालान का सिस्टम है जो हमारे ट्रैक्स का प्रोग्राम है, उसके ना सिर्फ शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की जिंदगियाँ बचेंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने खिताब करते हुए तजवीज़ दी है कि ई ट्रैकिंग चालान के ज़रिए जमा होने वाली रकम से सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए मेयर कराची की निगरानी में कमेटी तश्कील दी जाए। मेयर कराची या एडिशनल आईजी कराची की सरबराही में इसको एक कमेटी बनाएं हम, ताकि ये जो फाइन कलेक्शन हो उसके तहत ही फिर हम ये रोडों की जो मैनेजमेंट है, उनकी ट्रैफिक साइंस हैं, उनकी रोड की ड्राइंग है, वो कर सकें। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि CPLC को नज़रसानी के अमल में शामिल किया जाएगा। मंसूबे के तहत कैमरों की तादाद 12,000 तक बढ़ा दी जाएगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में सूबाई वज़रा, आला पुलिस अफसरान और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ आजिज़ जमाली, कराची। गैर कानूनी अफगान बस्ती मिस्मार करने का सिलसिला जारी। 10वें रोज भी ऑपरेशन कामयाबी से जारी रहा। 100 एकड़ से ज़ायद अराज़ी बागुजार करवा ली गई। कुछ मकीन ऐसे भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे घर भी मिस्मार कर दिए गए। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। अफगान बस्ती में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी। सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात मिस्मार। 214 एकड़ अराजी में से 100 से ज़ायद एकड़ अराजी वागुजार। मुल्क भर में कायम अफगान पनाह गुज़ीनों के कैंपों को बंद करने और कैंप की ज़मीन मुताल्लिका हुक्काम के हवाले करने की हिदायत की गई, जिसके बाद सुपर हाईवे नादरान बाईपास के करीब वाक़ अफगान बस्ती में ऑपरेशन तेजी से जारी है। बाज़ अफगान मुहाजिरीन की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं और 10-12 साल से यहाँ मुकीम हैं। अफगान बाशिंदों के साथ साथ हमारे घर भी मिस्मार कर दिए गए। ये होटल कम अज़ कम 20 साल से हम इधर रह रहा था अफगान बस्ती में अफगान के साथ। अब तो अफगानी वो तो हुकूमत के काम है, अफगानी चला गया है। अभी हम लोग पाकिस्तानी जो रोड में पड़ा हुआ था, ये सब तोड़ के जो है हम लोगों के ये हालात बना दिए। ये था हमारा होटल, इसको जो है तोड़ दिया, हम लोग रोड पे आके खड़ा हो गया। अभी उसको ये है, उससे कुछ मांग नहीं सकता है, वो खुद कर ले, हम लोगों को कुछ देवे या इसका बदला कोई और जगह देवे। हमें तकरीबन 11 साल का अरसा हुआ है यहाँ पे हम आबाद हैं। हम दिन रात मेहनत करके जो हमारा सरमाया था सारा इसी पे लगा दिया है, लेकिन जब हम बना रहे तो उसी वक्त किसी ने भी हमें नहीं कहा कि भाई आप ना बनाएं। अभी ये अफगान बस्ती का नाम दे करके इसको मिसमार किया जा रहा है। हुकूमत को ये चाहिए था कि जब वो काम स्टार्ट करते तो बर वक्त उनको रोकते, देखते तो ज़रूर थे लेकिन रोकते नहीं थे। जब सब लोगों का सरमाया इधर लग जाता फिर बुलडोज़र उस पर चला देते हैं, सारा डूब जाता है। ऑपरेशन में मलय डेवलपमेंट अथॉरिटी, RRF, इंक्रोचमेंट और सिंध पुलिस के जवान शामिल हैं। MDA हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन गैर कानूनी अराजी के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें गैर कानूनी मकानात को मिस्मार करने का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज के मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर। न्यू कराची सेक्टर 11D में सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, गटरों के ढक्कन गायब। सीवरेज के तबाहाल निज़ाम से शहरी परेशान। रिहायशी कहते हैं 15 साल से इलाके सड़कें तबाहाल हैं। सीवरेज की पाइपलाइन चौक होने से सड़क पर भी पानी जमा हो गया। इंतजामिया काम करने में गफलत बरत रही है। शिकायतें दर्ज कराएं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रमशा इस्माइल की रिपोर्ट।
उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम। कराची की सड़कों पर गाड़ियों के हिचकोले खाना मामूल बन गया। न्यू कराची सेक्टर D11 में भी मसाइल के अंबार लग गए। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, गटर के ढक्कन गायब और सड़कों पर गड़े पड़ गए। इलाके की गलियां तक तबाही का मंजर पेश करने लगी। रिहायशियों का कहना है कि वो अपनी मदद आप के तहत गटर के ढक्कन लगाने पर मजबूर है। 15 साल से इलाके की सड़कें खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं। के लोगों को थक गए और यहाँ के यूसुफ नाजिम को भी बोला, कौंसल को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं है पानी की, सीवरेज की। 15 साल हो गए तकरीबन, ये 6-7 गलियों के अंदर पानी नहीं है। हाँ, आगे पीछे से लाइनें लेके आ रहे हैं लोग, तो वहाँ से असल में पानी का कर रहे मामला। यूसुफ नाजिम थे, असल में उन्होंने कुछ डाले 2-4 ढक्कन, तो अभी थोड़ा सा हुआ, नहीं तो इससे पहले ये खाली पड़े हुए थे सारे ना। और आए दिन गटर बंद होते हैं, कोई सीवरेज लेन नहीं डाली जा रही नहीं, तो ताकि यहाँ सुकून हो, रास्ता क्लियर हो हमारा और हमारे नवाजी भाइयों का रास्ता क्लियर हो। रोड भी टूटे फूटे पड़े हैं, 15 साल से यहाँ पानी की परेशानी है। 15 साल हो गए रोड बने हुए, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं। सीवरेज की पाइपलाइन चौक होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे ताउफुन फैल रहा है और शहरियों की आमदो रफ्त में मुश्किलात बढ़ गई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। गुलिस्तान जौहर में सीवरेज का निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ब्लॉक 10 की सड़क पर गंदा पानी जमा होने से रिहायशियों समेत कारोबार भी मुतासर हो गया। दुआ शकील पराशा की रिपोर्ट। कराची में टूटी फूटी सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन गईं। शहर के बेशतर मकामात पर धूल मिट्टी ने मुसाफिरों का जीना महाल कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में भी सड़क की हालत अबतर, जहां सड़क पर जमा गंदे पानी ने रिहायशियों समेत कारोबार भी मुतासिर करके रख दिया है। हम लोग कारोबार भी नहीं कर सकते और दूसरी बात ये कि गटर का पानी मेन रोड से गटर, यहाँ पे रोज इतने हादसा होते हैं, बाइकों वाले गिरते हैं, गाड़ियों वाले लगते हैं, रोड पल्ले होते हैं, बंदे जख्मी होते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मकीनों का कहना है कि 2.5 साल से यही हालत है। गंदे पानी के बायस नमाजियों को मस्जिद और बच्चों को स्कूल जाने में अजियत होती है, जबकि सड़क पर गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। हमने सिंध को पेरिस बना दिया है भाई, ये देख ले, ये कराची के सड़कें हैं, ये कराची का रोड है, हमारा इस जीना जंजाल हो गया है। ये हम कारोबार करते हैं, हमारा कारोबार में बहुत असरात हो गए हैं, हमारा कारोबार दरम बरम हो चुका है। इलाका मकीनों और ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है कि सीवरेज का निजाम बेहतर करके सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि सुख का सांस ले सके। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान बलोच की हलाकत का केस जुनूबी की अदालत ने एहलकार आबिद शाह और आसिफ अली को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाडी कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुतासरीन की 2300 प्लॉट्स पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त, अदालती हुक्म पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश न हो सकी। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चत्तो गबोल गोठ में रिफाई प्लॉट पर तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का केस, मुल्जिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। घरेलू मुलाजमा सोनिया को मुबैना ज्यादती और जहर देकर कत्ल करने का केस, शर्की की अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। येलो लाइन मंसूबे में के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर की मुंतकिली का तनाज़ा, येलो लाइन मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर की मुंतकिली के लिए रकम की तलबी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगले 2 माह के लिए शरई सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि शरई सूद बरकरार रखना समझ से बाहर है। महंगाई की शरह कम होने पर शरई सूद सिंगल डिजिट में होना चाहिए। कराची चैम्बर सदर मोहम्मद रेहान हनीफ ने कहा कि शरई सूद को बरकरार रखने के फैसलों को मायूस कुन करार दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला, शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का वादा वफा न हुआ, ताजिर बरादरी मायूसी का शिकार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि हालिया महंगाई में इजाफा आर्जी नौयत का है, जबकि मजमूई माशी मंजरनामा पिछले अंदाजों के मुकाबले में बेहतर दिखाई देता है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर में अमूमी महंगाई बढ़कर 5.6% हो गई, जबकि औसत महंगाई 7.3% पर मुस्तकम रही। कमेटी ने कहा है कि सैलाब के बावजूद मईशत पर असरात तवक्को से कम रहे हैं और ज़रूरी पैदावार भी बड़ी हद तक बेहतर है। मरकजी बैंक के फैसले पर सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की उम्मीदों के बरखिलाफ फैसला है।
जिससे बिजनेस कम्युनिटी को मायूसी हुई। इसी चैम्बर के सदर रेहान हनीफ ने कहा कि महंगाई काबू में है, शरह सूद का मस कम 9% तक लाई जानी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि कारोबारी तबका पहले ही गैस, बिजली और कर्जों की बुलंद अखराजात से परेशान है। 2024 के आखिर में हुकूमत ने शरह सूद सिंगल डिजिट करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की माहाना बरामदात 3 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गईं। सितंबर 2025 में टेक्सटाइल की बरामदात 1 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। सितंबर 2025 में टेक्सटाइल तैयार कपड़ों की बरामद 48 करोड़ 50 लाख डॉलर की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर से अच्छी खबर। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की माहाना बरामदात 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तानी टेक्सटाइल के सनतकारों की बड़ी कामयाबी, महंगी पैदावारी लागत के बावजूद नया रिकॉर्ड बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 में टेक्सटाइल की बरामदात 1 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। सितंबर 25 में टेक्सटाइल और तैयार कपड़ों की बरामदात ने 48 करोड़ 50 लाख डॉलर की नई रिकॉर्ड सतह कायम की। मरकजी बैंक के मुताबिक टेक्सटाइल के अंदर बने हुए मलबूसात ने अब तक की बुलंद तरीन माहाना एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बना दिया। सितंबर 25 में मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा 60% पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 1,62,163 पर बंद। माहिरीन के मुताबिक रूल ओवर वर्क के बायस सरमायाकार मोहतात रहे। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 1,62,163 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह 1,63,570 जबकि कम तरीन सतह 1,61,766 को छुआ। माहिरीन का कहना है कि रोल ओवर वीक के बायस सरमायाकार मोहतात नजर आए, जिसके नतीजे में मुनाफे के हुसूल के लिए फरोख्त का रुझान गालिब रहा। खबरें तो आज बहुत पॉजिटिव है, चूंकि वो आज मॉनिटरिंग पॉलिसी का भी ऐलान हो रहा है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि एक या आधा % कम भी होगा तो उसका मार्केट पे बड़ा पॉजिटिव असर आएगा। रोल ओवर वीक इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर है, लोग अपना माल बेच रहे हैं या सेटल कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा। सरमायाकारों का कहना है कि आइंदे दिनों में माशी और मालियाती पॉलिसियों के हवाले से वादे इशारों के बाद ही मार्केट में इस्तेकाम मुतवक्के है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सुपारको के ज़ेर एहतमाम GOAI बराए जंगलाती मालूमात के मौजू पर बैनुल-अक़वामी तरबियती कोर्स का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन मसनूई ज़हानत के जरिए जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तरबियत हासिल कर रहे हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। मसनूई ज़हानत का बढ़ता इस्तेमाल। सुपारको के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी तरबियती कोर्स का आगाज़। तरबियती कोर्स 27 ता 31 अक्टूबर तक सुपारको कॉम्प्लेक्स कराची में होगा। कोर्स अज़नेट के रुकन ममालिक के माहिरीन की पेशा वराना सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए तरतीब दिया गया है। मसनूई ज़हानत और जुग्राफियाई मालूमाती टेक्नोलॉजी को जंगलात की मौसर निगरानी, हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़मीन के इंतज़ाम में इस्तेमाल कर सकेंगे। अज़नेट के मुख्तलिफ रुकन ममालिक बशमूल इराक, उर्दून, लीबिया, ट्यूनिस, ईरान और पाकिस्तान से शुरका हिस्सा लेंगे। गैर मुल्की मंदूबीन ने कोर्स के इनेकाद को सराहा। In fact, we are pleased to participate in this training course. And I think that the application of GOAI will be more efficient and practical for management of forestry in our country. This training course is very important for us in Iraq because we have desertification and degradation, and we hope this is important and helpful for us. मुंतज़मीन ने बताया कि तरबियत लेक्चर्स अमली मुजाहिरों और मुश्कों के जरिए दी जाएगी। GOAI फ्रेमवर्क के तहत माहौलियाती डेटा के तज्जिए और फैसला साजी के अमल को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। बेसिकली इस ट्रेनिंग कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हम कैपेसिटी बिल्ड करें, बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से एडवांस कर रही है ना, इनकी एप्लीकेशंस जो है वो लोगों को पता होनी चाहिए, सो दैट ये जो टेक्नोलॉजीज हैं और स्पेशली जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकती है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन में, उनको एक्सप्लोर करना। ये इक़दाम अज़नेट की उन मुसलसल काविशों में एक अहम संग मील है। अज़नेट खला पर मबनी एप्लीकेशंस के जरिए माहौलियाती इस्तेहकाम में बैनुल-अक़वामी ताउन और इल्म के तबादले के फ़रोग़ के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।